everyone. Myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is SS. We are discussing chapter number 8, the frigid zone, and this is my session number 1 for this chapter. That means this is a new chapter. So, in our previous sessions, we have already discussed regarding the temperate zones of the world, the equatorial forest region, then the hot desert, and now we are going to learn about the frigid zone. What is it? Frigid zone. So now, let us start the chapter. It is there in page number 310 in your textbook. There are two frigid zones, one in each hemisphere. Can you say this? This is an equator. Equator divides the earth in two zones. The upper part is called the northern hemisphere. The lower part is called the southern hemisphere. So the equator divides earth in two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. So the frigid zone are present in the northern hemisphere as well as southern hemisphere. दोनों हेमिस्फीयर्स में फ्रिजिड जोन वहां पर लोकेटेड है. सो वी आर डिस्कसिंग लोकेशन. क्या डिस्कस कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ द फ्रिजिड जोन. के फ्रिजिड जोन कहां पर है? सो देर आर टू फ्रिजिड जोन्स ऑन ईच हेमिस्फीयर. हर एक हेमिस्फीयर में एक फ्रिजिड जोन है. द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, that is 66.5 degree north, and the north pole 90 degree. Northern hemisphere में वो कहां पर है frigid zone? It is present in between 66.5 degree north, that is Arctic circle, and north pole 90 degree north pole. So ये बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे frigid zone. Where is it located? In northern hemisphere. Listen to this explanation carefully. Northern hemisphere में कहां पर है? 66.5 degree north, that is Arctic circle, and north pole, that is 90 degree north. जो north pole है उसके बीच का जो the places in between this are the frigid zones of the northern hemisphere. Clear? Now, while the southern frigid zone lies between the Antarctic circle, that is 66.5 degrees south, and the southern pole, that is 90 degrees south. So southern hemisphere में कहां पर है? Southern hemisphere also it is present in between 66.5 degrees south, that is Antarctic circle, and south pole, that is 90 degree S. ये 90 degree N है. क्या है? 90 डिग्री N, that is नॉर्थ साइड में. ये है 90 डिग्री S, means साउथ. सो सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज इन बिटवीन 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं, एंड सदर्न पोल, साउथ पोल, दैट इज 90 डिग्री S. उन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर का लोकेशन है फ्रिजिड जोन का. सो हियर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच, एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच. दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फ्रिजिड जोन. जितने भी प्लेसेस यहां पर आते हैं वो फ्रिजिड जोन में हम कंसिडर करेंगे. You can also find a map given in the textbook below the explanation. Explanation के नीचे एक मैप दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसमें भी आप इसका लोकेशन देख सकते हो. ये मैंने और मतलब ग्लोब ड्रॉ करके उसमें आपको समझाया है. यहां पर आपको मैप में दिया गया है. क्लियर? नाउ, एज द नेम सजेस्ट मतलब नेम जैसे आप सुनते हो उसी से आपको पता चल जाता है. द प्लेसेस नियर द पोल्स आर परमानेंटली कवर्ड बाय आइस एंड आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. नेम से ही पता चल जाता है कि ये प्लेसेस जो है वो पोल्स के नजदीक है और वो एकदम
आइस से कवर्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द प्लेसेस नियर द पोल्स आर परमानेंटली कवर्ड बाय आइस एंड आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। फ्रोजन मतलब बर्फ से जमे हुए होते हैं। The continent of Antarctica is the coldest place in the world and it lies in the southern frigid zone. एंटार्क्टिका का एक कॉन्टिनेंट है जो सदर्न फ्रिजिड जोन में आता है। इट इज वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस। सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका नाम का जो प्लेस आता है वो वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। वेयर इज इट? इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज नोन एज द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका। नेक्स्ट, लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड साइबेरिया फॉल इन दिस रीजन। ये सारे के सारे कंट्रीज के नाम जो मैंने लिए, ये सारे के सारे फ्रिजिड जोन में है। कौन कौन से फ्रिजिड जोन में है? विच कंट्रीज लाई इन द फ्रिजिड जोन? That is large part of Canada, Alaska. Listen to the pronunciation correctly so that you can read it on your own. Large part of Canada, Alaska, Scandinavia, coastal Greenland, Iceland and Siberia. They are all found in the frigid zone. The areas around the poles are sparsely populated due to severe cold and lack of vegetation. Now here you find a new word, sparsely. Sparsely का मतलब क्या है? Sparsely का मतलब, see if I tell you that the deserts are sparsely populated, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, करेक्ट? बहुत कम, तो उसे स्पेयर्सली कहते हैं। सो द एरियाज अराउंड द पोल्स, तो पोल्स जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पोल्स के आजू बाजू के जो एरिया है, उसके नजदीक के जो एरिया है, दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। लोग ज्यादा वहां पर नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं लोग। वाई? क्यों स्पेयर्सली पॉपुलेटेड क्यों है? वाई डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, क्यों बहुत कम लोग रहते हैं? बिकॉज ऑफ सीवियर कंडीशंस, बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड होता है, तो वहां पर इतनी ठंडी में जिंदा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी भी ठंडी ज्यादा हो जाए तो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे कितनी ठंडी है, इसमें हम बाहर कैसे जाए, अर्ली मॉर्निंग, हाउ डू वी गो टू स्कूल, हाउ डू वी गेट रेडी, हाउ डू वी टेक बाथ, ऑल दिस थिंग्स। Just imagine that we are not falling in the frigid zone. हम तो फ्रिजिड जोन में है भी नहीं, तो फ्रिजिड जोन में जो लोग रहते होंगे उनके लिए कितनी सीवियर कंडीशन होगी, करेक्ट? सो बिकॉज ऑफ द सीवियर कोल्ड एंड लैक ऑफ वेजिटेशन। लैक ऑफ वेजिटेशन क्यों है? क्यों यहाँ पर वेजिटेशन लैक मतलब बहुत कम है? एज आई टोल्ड, ये फ्रिजिड जोन है, मतलब बर्फ से ढके हुए। अगर बर्फ से ढके हुए हैं तो वहां पर कुछ ग्रो होगा? इज इट पॉसिबल टू ग्रो एनीथिंग ओवर देयर? नो, बिकॉज एनी प्लांट्स दे नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो, करेक्ट? एंड दे ग्रो ओनली ऑन सॉइल, बट हियर द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। फर्स्ट थिंग, हाउ विल दे गेट वाटर? Because the water is frozen. Sunlight, hardly some sunlight is found there near the poles. That too, it is not so hot. Sunlight की heat भी इतनी नहीं होती है, क्योंकि sun जो है उसकी रेज एकदम slanting position में आती रहती है, तो गर्म रहेगी वो heat? No, the rays of the sun are not so heat. So that is why there is lack of vegetation. Vegetation भी कम है, इसीलिए उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है। वेजिटेशन कम है मतलब खाने पीने की चीजें नहीं मिलेगी।
खाने की चीजें चाहिए। तो नाउअडेज मॉडर्न डेज में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत पॉपुलर हो गया है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्रांसपोर्टेशन की जो लिंक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं से भी कुछ भी हम मंगवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ सकता है, हम ले सकते हैं। बट ये महंगा होगा ना, क्योंकि जितने ट्रांसपोर्टेशन वाले आते हैं वो ऐसे ही चीजें नहीं लाते हैं ना, दे टेक देयर चार्जेस। तो खाने पीने की चीजें बाहर से अगर आप मंगवा कर खाते हो तो वो महंगी हो जाती है, करेक्ट। तो इसी वजह से वेजिटेशन इज नॉट देयर, सो द लिविंग कंडीशन इज डिफिकल्ट एंड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी होने की वजह से भी ये लिविंग कंडीशंस डिफिकल्ट हो जाती है। Many expeditions have been taken to these places for exploration. Expeditions, new word. See, the meaning is given in the keywords. Expeditions का मतलब क्या है? An organized journey with a particular aim, especially to find about a place that is not well known. Expedition का मतलब एक जर्नी प्लान करना जिसमें हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो इस तरह की जर्नी पर अगर आप जाते हो जिसमें आप किसी नई जगह पर जाते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उस टाइप की जो आपकी पिकनिक, आई मीन एक्सपीडिशन बोल सकते हैं, पिकनिक नहीं बट उस टाइप की आपकी जर्नी को एक्सपीडिशन कहेंगे। ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस टू फाइंड अबाउट इट, ओके, एंड दैट इज अ वेल प्लान्ड जर्नी, एकदम वेल प्लान्ड जर्नी होनी चाहिए। सो एक्सपीडिशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद अ पर्टिकुलर एम, especially to find out about a place that is not well known. Okay, so many expeditions have been taken to these places for exploration. तो यहाँ फ्रिजिड जोन में बहुत सारे एक्सपीडिशंस भी लोग करते हैं, क्यों कि उन्हें शायद कुछ नया पता चल जाए इन फ्रिजिड जोन्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। एज आई टोल्ड यू, क्लाइमेट ये फ्रिजिड जोन है, means it is covered with snow throughout the year, frozen throughout the year, पूरे साल फ्रोजन ही रहता है, यहाँ पर गर्मी होती नहीं है। सो क्लाइमेट, जैसे ही आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, यू थिंक अबाउट ओनली वन थिंग, करेक्ट, दैट दिस इज कंप्लीटली फ्रोजन एंड नथिंग कैन बी ग्रोन, एक्सट्रीमली कोल्ड। Both the northern and southern frigid zone are far from equator and receive the slanting rays of the sun only when it is summer in each hemisphere. So, क्योंकि ये दो फ्रिजिड जोन्स है, वो दोनों पोल्स के पास है, ये नॉर्थ पोल के पास, ये साउथ पोल के पास, करेक्ट। तो इस वजह से यहां पर सन की रे स्लैंटिंग होती है, it receives slanting rays of the sun only when it is summer in each hemisphere. क्यों समर मैंने बोला? As I told you, Earth has its oval shaped orbit in which it moves around the sun. Now, Earth is not like this straight, it is tilted position. ये north pole, ये south pole. So suppose now here when it is there, it is like this, north pole and south pole. तो अब सन की रेज साउथ पोल में तो आएगी बट नॉर्थ पोल में आएगी, क्योंकि सन की रेज यहाँ आकर यहाँ स्टॉप हो जाएगी, नॉर्थ पोल तो इधर है, तो यहाँ पर आएगी नहीं। सो जब उसे समर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर वाले लोगों के लिए समर है, तो ये जो है इस पार्ट के लिए समर है, बट इस पार्ट के लिए अभी समर नहीं होती है, करेक्ट। उनके लिए विंटर है बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम सन, एंड जब इट कम्स, व्हेन इट कम्स हियर अगेन, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो नाउ द सन्स रेज फॉल स्टिल हियर, यहां तक आती है, तो नॉर्थ पोल के लिए समर है बट साउथ पोल तो इट इज अवे, ये साउथ पोल है तो इट इज अवे,
तो यहाँ पर विंटर है, समर नहीं होती है, करेक्ट। सो इस वजह से whenever they are having summer, जब जिस पोल के लिए समर सीजन है तब उस पोल में समर में स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन आएगी, स्ट्रेट रेज नहीं है, इसीलिए रेज बिकम वीकर एज दे बिकम मोर स्लैंटिंग। जैसे जैसे स्लैंट होता जाएगा रे, वो वीक होता जाएगा, उसमें हीट कम हो जाएगी। दिस सनलाइट इज सो वीक that it is not even enough to warm the land. ये इतनी वीक होती है सन रेज, सन की रेज के इससे लैंड भी हीट अप, वार्म नहीं होता, हीट तो छोड़ो वार्म भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत गर्म भी नहीं होता है, सिर्फ ब्राइटनेस देता है बट गर्मी नहीं देती है ये रेज। नाउ विंटर आर वेरी सीवियर एंड टेम्परेचर्स में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री का मतलब क्या है? सी ये आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी होगी, 0, यहां पर 1, 2, 3 एक्सेट्रा। एज यू गो बियॉन्ड 0, 0 से पीछे जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे, -1, -2, -3, इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे। सो 0 से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर रेज होता है, तो 1 से 2, 2 से 3, हमें कभी कभी अभी का टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल अभी का टेम्परेचर यू कंसिडर के 35 से 36 डिग्री है, तो जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी तो वो ड्रॉप होता जाएगा, मतलब लेस होता जाएगा, 35 से 25, 25 से सपोज 18, 16 ऐसे ड्रॉप होता जाएगा टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है ठंडी बढ़ने लगती है, जैसे टेम्परेचर रेज होता है मींस एक्सट्रीम समर सीजन है, तो वहां पर कभी कभी 40, 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट दे हैव टोल्ड यू, winters are very severe and the temperature may drop to -40 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में कभी कभी यहाँ फ्रिजिड जोन में -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। हम तो 0 तक भी नहीं आते इंडिया में, ओके, बट यहाँ पर फ्रिजिड जोन में 0 से कम होते 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 -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। In summer, which hardly extends for 2 to 3 months, the temperature may rise varying between 3 degree to 12 degree Celsius. Summer season में जो हार्डली 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने होते हैं, 2 to 3 months का ही समर होता है हार्डली, तो इन 2 to 3 months में टेम्परेचर -40 से थोड़ा रेज होते 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 इट वेरीज बिटवीन 3 डिग्री सेल्सियस एंड 12 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक समर में होता है उनका टेम्परेचर, जबकि हमें विंटर में भी 3 डिग्री पर बहुत ठंड लगने लगती है, करेक्ट। कभी कभी हम जहां पर रहते हैं यहाँ पर तो 3 डिग्री तक ड्रॉप होता भी नहीं है, करेक्ट, बट उन्हें समर में 3 डिग्री टू 12 डिग्री का टेम्परेचर एक्सपीरियंस होता है। रेनफॉल में रेंज फ्रॉम 15 टू 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर। 15 टू 30 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल होता है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट्स बट द आइस कैप्स ऑफ द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन रिमेन इंटैक्ट। समर सीजन में स्नो थोड़ा बहुत मेल्ट होता है, बट द आइस कैप्स मतलब ऊपर का जो हिस्सा है बर्फ का, वो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल का है जो वो रिमेन्स इंटैक्ट। रिमेन्स इंटैक्ट का मतलब है उसमें कोई फर्क आता नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, वो पूरा बर्फ से जमा हुआ ही रहता है। द पोलर रीजन हैव अ पेक्यूलियरिटी। पोलर रीजन की एक पेक्यूलियरिटी है,
ड्यूरिंग समर देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट इवन एट मिडनाइट। पोलर रीजन्स में एक स्पेक्यूलियरिटी मतलब स्पेशलिटी है, पेक्यूलियर चीज होती है क्या, कि वहां पर समर सीजन में कंटिन्यूअस दिन और रात कंटिन्यूअसली उन्हें डे लाइट का वहां पर ब्राइटनेस होती है। सी फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे मैंने साउथ पोल दिखाया, करेक्ट, यहां पर साउथ पोल दिखाया, यहां पर नॉर्थ पोल दिखाया। अब ये चाहे नॉर्थ पोल गोल गोल भी अगर घूम ले, रोटेशन नॉट रेवोल्यूशन, द स्पिनिंग मूवमेंट जिससे डे एंड नाइट होता है, बट डे एंड नाइट होता है तो भी सन की रेस तो यहाँ आती है रहती है, ये तो सन से दूर जाएगा ही नहीं, तो वहां पर नाइट का डार्कनेस आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टिल्टेड पोजीशन है, अर्थ की टिल्टेड पोजीशन होने की वजह से यहां पर नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल में व्हेन इट इज हैविंग समर, अब इसका समर चल रहा है क्योंकि ये सन की तरफ फेसिंग है, तो यहां पर कंटिन्यूअस दिन में या चाहे आधी रात में आप देख लो वहां पर डे लाइट होती ही है। ड्यूरिंग समर देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट इवन एट मिडनाइट। सिमिलरली इन विंटर दीज रीजन्स हैव कंटिन्यूअस डार्कनेस। ऐसे ही यहां पर साउथ पोल देखिए, साउथ पोल एज इट इज अवे फ्रॉम सन, सन से अवे, तो ये कितना भी रोटेट कर ले अर्थ, बट ये जो है साउथ पोल वो सन के सामने आएगा ही नहीं। इस वजह से इनको जब विंटर है तब कंटिन्यूअस डे एंड नाइट डार्कनेस ही रहेगी, वहां पर ब्राइटनेस आएगी नहीं आएगी। स्नो कीप्स फॉलिंग एंड द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन हार्ड। स्नो गिरते ही रहती है विंटर में और यहाँ पर जो फ्लोर है उनका वो फ्रोजन हार्ड ही रहता है। इन जून व्हेन द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन रिसीव्स कंटिन्यूअस लाइट, जून के महीने में जब नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन में समर है तो उनके लिए तब कंटिन्यूअस लाइट रहेगी, डे एंड नाइट कंटिन्यूअस लाइट रहेगी। द सदर्न फ्रिजिड जोन हैज कंटिन्यूअस डार्कनेस। तो यहाँ पर जून के महीने में जब नॉर्थ पोल वाले को, नॉर्थ फ्रिजिड जोन को कंटिन्यूअस डे लाइट है, साउथ पोल वालों को कंटिन्यूअस डार्कनेस एक्सपीरियंस होगा। द सिचुएशन इज रिवर्स इन डिसम्बर, और जब दिसंबर आएगा तब सिचुएशन रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ पोल वालों को कंटिन्यूअस डार्कनेस होगी, साउथ पोल वालों को कंटिन्यूअस ब्राइटनेस होगी। Sometimes the sky is lit up by aurora borealis. Aurora borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere. Northern hemisphere में aurora borealis है, south hemisphere या southern hemisphere में aurora australis। ये क्या है? Aurora borealis and aurora australis. Aurora borealis, see it is given in keywords. Band of colored light, mainly green and red, that are sometimes seen in the sky at night in most northern countries of the world. आप पिक्चर में देख सकते हो, see I am also sharing a picture here. तो यहाँ पर पिक्चर में आप देखोगे कि ग्रीन एंड रेड कलर की लाइट नाइट, ड्यूरिंग द नाइट ये लाइट आपको दिखेगी, तो ये इसे हम कहेंगे ऑरोरा बोरलेस। नेक्स्ट, ये ऑरोरा बोरलेस कहां पर होता है? ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां पर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस, band of colored light that are sometimes seen in the sky at night in most southern countries of the world. ये जो है वो सदर्न कंट्रीज में आता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरेलिस जो है वो नॉर्दर्न कंट्रीज में आता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है ये सदर्न कंट्रीज में आता है। दोनों जो लाइट्स है ऑरोरा बोरेलिस रेड एंड ग्रीन कलर के होते हैं, ये नॉर्थ में है एंड दे अपीयर एट नाइट। और ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है ये सदर्न कंट्रीज में दे ऑल्सो अपीयर एट नाइट।
ये भी रात में ही होते हैं. They are naturally occurring bright lights that are usually observed at night in the polar region. ये naturally occurring lights है जो polar region में during the night आप देख सकते हो. They are caused by the collision of charged particles from the Earth's atmosphere. ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के पार्टिकल्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कुछ पार्टिकल्स जो है वो जब एक दूसरे से कोलिजन मतलब कोलाइड करते हैं, दे टकराते हैं, तब ये लाइट प्रोड्यूस होती है. दे अपीयर इन द फ्रिजिड जोन ओनली. ओके, सो नाउ हियर आई कम टू द एंड ऑफ today's session. So in today's session we learned the location of the frigid zone and the climate of the frigid zone. Okay, so I'm sending a PDF along with this video in which you have to solve the fill in the blanks. You can find the answers from the textbook. Okay, you can take the help of your friends if you are finding any difficulties, or you can contact me. Hope in today's session whatever I have explained is clear to you. Goodbye. See you in the next session. Bye.